آئے ہم اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان براہ کرم ہمیں ماں کا مہین کتانی کپڑا بننے دیجیے کے تحت کرتے ہیں۔ آج کے واز کا عنوان سنتے ہی کیا آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ آج ہم خدا کے کلام سے خدا کی محبت کی نوعیت کے بارے میں سیکھیں گے؟ خوبصورت مہین کتانی کپڑا بننے کی غرض سے ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے دلوں میں خدا کی پاک محبت ہونی چاہیے۔ کیا ہوگا اگر محبت کے بغیر تمام بنی نوع انسان کو خوشخبری کے پیغام کی منادی کی جائے؟ کیا ہوگا اگر ہم اب تک جھگڑتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ متحد نہ ہوں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی عزت یا خیال نہ رکھیں؟ تو پھر کون ایسے لوگوں سے بھری آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہے گا؟ لوگ وہاں جانے سے گریز کریں گے۔ اگر وہ شخص آسمان پر جاتا ہے تو میں آسمان سے گریز کروں گا۔ آپ سب، کیا یہ غلط نہیں ہوگا اگر ہم ان کے ذہنوں میں اس قسم کی سوچ ڈالیں؟ اسی لیے اب ہمیں تبدیلی سے گزرنا ہے۔ اگر ہم ماں کا خوبصورت مہین کتانی لباس بننا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں ان تمام بری چیزوں سے دور نہیں رہنا چاہیے جو ہمیں ماضی میں تھیں، جیسے کہ ہمارے گناہوں کے داغ اور ہماری گناہ بھری فطرت؟ میں نے اس تبدیلی کے عمل کے بارے میں سیکھا ہے جسے شہزادوں کو گزرنا پڑتا تھا، یعنی ولی عہد ہونے سے لے کر بادشاہ بننے تک۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ولی عہد ہمیشہ یہ سیکھنے پر مرکوز رہتے تھے کہ اچھا بادشاہ بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بچپن ہی سے انہیں سکھایا جاتا تھا کہ لوگوں پر حکومت کیسے کرنی ہے، اپنے لوگوں کے لیے ہمدردی کا دل پیدا کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو جائیں اور تمام شاہی اختیار حاصل کر لیں تو اپنے والدین کے ساتھ مناسب رویہ رکھنا ہے۔ تاہم اگر انہیں پڑھنا پسند نہیں ہوتا تھا یا وہ اپنی پڑھائی سے تھوڑی سی بھی لاپرواہی کرتے تھے یا انہیں صحیح طور پر عمل میں نہیں لاتے تھے تو پھر شاید وہ شہزادے کے طور پر زندگی گزارتے تھے، لیکن وہ مزید ایک ولی عہد کے عہدے پر قائم نہیں رہ سکتے تھے۔ اسی لیے ایک بادشاہ، ایک ملکہ اور ان کے آس پاس دوسرے تمام اعلیٰ عہدیدار ہمیشہ اس بات کو آزماتے تھے جو انہوں نے سیکھی تھی، تاکہ یہ جانچیں کہ تخت کا اگلا وارث کون ہوگا۔ میں نے اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ مکاشفہ باب 22 کے مطابق جب ہم آسمان پر جائیں گے تو ہم کون بنیں گے؟ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ بنیں گے۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو ہم عبدالباد بادشاہی کریں گے۔ خدا جو آسمان کی بادشاہی میں بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند ہیں کہیں گے تو 10 شہروں پر بادشاہی کر، تو 5 شہروں پر بادشاہی کر۔ ہم سب شاہی کاہنوں کا فرقہ بنیں گے جو اس طرح بادشاہی کریں گے۔ اسے پورا کرنے کے لیے ضروری اصول، مناسب قوانین اور مناسب اعمال ہیں جنہیں برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اس دنیا میں رہنے کی غرض سے ہمیں اس دنیا کے قوانین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر ہم آسمان پر رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ہمیں آسمان کی بادشاہی کے قوانین کے بارے میں سیکھنا چاہیے۔ خدا نے انہیں کتاب مقدس میں رکھا ہے۔ بادشاہ سوچیں، اگرچہ یہ کتاب مقدس میں لکھا ہے پر میں اپنی زندگی اس طرح نہیں گزار سکتا، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں ایسی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ ایسا سوچنے کی بجائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ اس زمین پر شہزادے بھی جب سے وہ چھوٹے بچے تھے مسلسل سیکھتے اور خود کو بہتر بناتے رہتے تھے۔ انہوں نے اخلاقیات، نیکی کرنا، فرزندانہ فرائض اور ملک پر حکومت کرنے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے بارے میں سب کچھ سیکھا۔ کیا یہی وجہ نہیں کہ انہوں نے بنیادی تعلیم اور دی 1000 کریکٹر کلاسک سمیت بہت سا تعلیمی مواد سیکھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ شاہی خاندانوں کے اپنے اسباق ہوتے تھے اور شہزادوں کے اپنے اسباق ہوتے تھے۔ مستقبل میں جب ہم آسمان کی بادشاہی کا ابدی جلال حاصل کریں گے تو خدا کہیں گے تم 5 شہروں پر اختیار رکھو، تم 10 شہروں پر اختیار رکھو۔ اگر ہم ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے میں ناکام رہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں تو ہم بیچ میں نااہل ٹھہریں گے اور کمزور پڑ جائیں گے۔ تاریخ میں ایسے کئی شہزادے تھے جنہیں ولی عہد کے طور پر چنا گیا تھا لیکن وہ تخت پر چڑھنے کے قابل نہیں تھے۔
वो ऊपर क्यों ना आ सके? अगरचे वो वली अहद बने, पर अगर उनमें चाल चलन या तालीम की कमी होती या लोगों के लिए हमदर्दी ना होती तो उनकी रियाया मुसलसल दरखास्तें पेश करती थी। आखिर में शहजादा वली अहद नहीं बन पाता था या वली अहद का ओहदा किसी दूसरे भाई को देना पड़ता था। आप सब दुनिया में यही तरीकाकार है। अब्दे जिंदगी और आसमान की बादशाही का जलाल हासिल करने की गर्ज से अगर बुनियादी तालीम द 1000 कैरेक्टर क्लासिक जैसी कुछ हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका जायजा लेना और इस पर अमल करना चाहिए। सिर्फ तभी हम शाही काहिन के किरदार को खातिर खा अंजाम दे सकते हैं जो खुदा हमसे चाहते हैं कि हम बने। जब हम बगैर मेहनत किए खड़े रहते हैं तो खुदा महज ये नहीं कहते कि तुम आसमान की बादशाही में शाही काहिनों का फिरका होगे। अगर खुदा कहते हैं कि खूबसूरत महीन कतानी कपड़ा बनने की गर्ज से तुम्हें अपने माजी के तमाम दाग दूर करने चाहिए तो फिर हमें उन्हें फेंक देना चाहिए। अगर वो कहते हैं ये पुरफजल नहीं है तो हमें तमाम बेफजल चीजों को दूर कर देना चाहिए। यूं वो शहजादा जो इस तरह की तब्दीली से गुजरा बाद में वुज़रा या शाही खानदान की जानिब से तजवीज किया गया, जिन्होंने कहा हम उसे वली अहद मुकर्रर करते हैं और आखिरकार उसे वली अहद बनने की बादशाह से तो सीख मिली। ताहम ये वली अहद बनने पर खत्म नहीं हुआ। जब वो वली अहद बना तब से लेकर बादशाह बनने तक अगर वो मुनासिब तौर पर काम करने या लोगों पर पुरफजल तौर पर हुकूमत करने में नाकाम रहा तो वो नाअहल ठहराया जाएगा। जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं वो यही है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें खुदा के अहकाम मानने चाहिए, जैसे कि सब्बत का दिन और फसा, मगर अपने चाल चलन या किरदार को नजरअंदाज कर देना ठीक है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम मुकाशफा की किताब के बाब 19 की तरफ जाते हैं और किताब मुक़द्दस में बाप और माँ की पाक मर्जी का तफसील से मुताला करते हैं। हम मुकाशफा की किताब बाब 19 आयत 6 से देखते हैं। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया। क्योंकि महीन कतानी कपड़े से क्या मुराद है? मुकद्दस लोगों की रासबाजी के काम मुराद हैं। जब मुकद्दसों के रासबाजी के कामों का हर एक धागा और टांका बुना जाता है और दूसरे से मिल जाता है तो आखिर में क्या तैयार हो जाता है? इससे दुल्हन के लिए एक खूबसूरत बारीक कतानी लिबास तैयार हो जाता है। इसलिए हमें आसमानी माँ के जलाल के लिए रासबाजी के कामों में रहना चाहिए। मुकाशफा बाब 22 में बयान किए गए शाही काहिनों का किरदार अदा करने की गर्ज से इसी लम्हा से शुरू करते हुए हमें खुदा की बख्शी हर एक तालीम को सीखने और उस पर अमल करने वाले लोग बनना चाहिए, बल्कि आसमान की बादशाही में जिंदगी गुजारने की राहों की तरफ। हम यसाया बाब 60 से देखते हैं। बाब 60 आयत 20, तेरा सूरज फिर कभी ना ढलेगा और तेरे चांद को ज़वाल ना होगा, क्योंकि खुदावंद तेरा अब्दी नूर होगा और तेरे मातम के दिन खत्म हो जाएंगे और तेरे लोग सबके सब रास्तबाज होंगे। वो अब तक मुल्क के वारिस होंगे, यानी मेरी लगाई हुई शाख और मेरी दस्तकारी ठहरेंगे ताकि मेरा जलाल जाहिर हो। सबसे छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे हकीर एक जबरदस्त कौम। मैं खुदावंद ऐन वक्त पर यह सब कुछ जल्द करूंगा।
यहाँ ये कहा गया है, और तेरे लोग सब के सब रास्तबाज होंगे, वो अब तक मुल्क के वारिस होंगे, यानी मेरी लगाई हुई शाख और मेरी दस्तकारी ठहरेंगे। ये किस लिए है? ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। लिहाजा हमें खुदा को पसंद आने वाले और खुदा के जलाल को जाहिर करने वाले बनना चाहिए। अब तक अगर हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें रही हैं जो खुदा की नजर में मुनासिब नहीं थी, जैसे कि मुत्हिद ना होना, हम आगे की कमी, एक ना होना या अपने मुनफरिद मिजाज की वजह से दूसरों को तकलीफ देना, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें बदल जाना चाहिए ताकि हम नए सिरे से पैदा हो सकें। हमें माँ का खूबसूरत महीन के तानी कपड़ा बनने के लिए नए सिरे से पैदा होना चाहिए और आसमान की बादशाही में शाही काहिन भी बनना है। आए इसके मुतालिक खुदा के कलाम पर एक नजर डालते हैं। हम मत्ती बाब 5 आयत 20 से देखते हैं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रासबाजी फकीयों और फरीसियों की रासबाजी से ज्यादा ना होगी तो क्या होगा? तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। आप सब, इस आयत का क्या मतलब है? हमारी उम्मीद आसमान की बादशाही में जाने की है। ताहम उनके कलाम के मुताबिक अगर तुम्हारी रासबाजी फकीयों और फरीसियों की रासबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। क्या यीशु हमारे खुदा नहीं है? खुदा ने अपने कलाम में वाज़ेह तौर पर इसे निशानजद किया है। हमें इन अल्फाज के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। चाहे हमने इस दुनिया में जैसी भी जिंदगी गुजारी हो, जब हम खुशखबरी की जिंदगी में दाखिल होते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपने गुज़िश्ता गुनाहों को मसलूब करते हैं और खुदा में नए सिरे से पैदा होते हैं। तो फिर इस लम्हा से हमें क्या करना चाहिए? अब हमें आसमान के वली अहद की मानद बनना चाहिए। हमें आसमान के वली अहद और शहजादियों के तौर पर अपने किरदार निभाने के काबिल होना चाहिए। जब हम आसमान की अब्दी बादशाही में वापस जाएं, तो हम सबको खुदा बाप और खुदा माँ के फजल में शरीक होना चाहिए, जो कहेंगे तुम 10 सल्तनतों पर बादशाही करोगे और तुम 5 सल्तनतों पर बादशाही करोगे। इसीलिए खुदा ने हमें सीखते रहने की इजाजत दी है। तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, तुम्हें ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। यूं खुदा हमें बेदार करते रहते हैं। बाज लोग कहते हैं हम किताब मुक़द्दस की तमाम तालीमात पर कैसे अमल कर सकते हैं। ताहम हमें कोशिशें करनी चाहिए। आसमान की बादशाही के लिए जोर मारने का क्या मतलब है? क्या ये कोशिशों को जाहिर नहीं करता? खुदा ये भी कहते हैं दीनदारी की रियासत करो। इसलिए हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हम मत्ती बाब 5 आयत 21 से जारी रखते हैं। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा उसके साथ क्या होता है? वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो किस हाल में होगा? वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। यसु खुद इस ज़मीन पर आए और हमें ये तालीम दी, हत्ता कि इस जमाना में यानी रुल कुद्स आसमानी बाप और आसमानी माँ के जमाना में जो रूह और दुल्हन है इस मामले पर बहुत जोर देते हैं। आपस में मुत्तहिद रहो, हम आहंगी में रहो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, नई इंसानियत को पहनो। खुदा के ये अल्फाज हमेशा हर तालीम के दौरान बख्शे गए हैं। तमाम बनिनो इंसान की रूहों की निजात के अजीम मकसद के तहत अब खुशखबरी का हर दिन हमारे सामने खुल रहा है। सबसे पहले क्या हमें ऐसे मकाम पर खड़े नहीं होना चाहिए ताकि हमारे बात सच्चाई को कबूल करने वाले लोग हमारे नमूने के जरिए खुदा और उनके कलाम के बारे में सीख सकें? आप सब मुस्तदी से इन सब बातों पर अमल करने वाले लोग बेहतरीन हैं।
चाहे हमारे आसपास दूसरे लोग कुछ भी कहें या कुछ भी करें, हमें किताब मुक़द्दस की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। बात शायद सोचें, मैं ये करूं या ना करूं, इससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। वो अब्दुलबाद बादशाही के मनसब से दूर होते चले जाते हैं। हम सबको वो लोग बनना चाहिए जो माँ का खूबसूरत महीन कतानी कपड़ा बनने के लिए बड़ी मेहनत और जिदोजहद करते हैं। क्या हमें नहीं बनना चाहिए? यही वजह है कि गलतियों में खुदा हमें ये तालीम देते हैं। आए गलतियों बाब 5 आयत 13 से देखते हैं। ऐ भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि खुदा हमें क्या करने की हिदायत देते हैं? मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। खुदा कहते हैं एक दूसरे की खिदमत करो, इसका मतलब मुत्तहिद होना है, सही? क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़े खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो, तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। हमें रुल कुद्स की ख्वाहिश के साथ आसमान की बादशाह की तरफ दौड़ना चाहिए। ताहम चूंकि हम जिस्मानी ख्वाहिशों से भरे पड़े हैं, इसलिए जो हम करना चाहते हैं हम पर मुसलसल पाबंदियां हैं, रुकावटें डाली जाती हैं, और जो हम करना चाहते हैं करने से रोके जाते हैं। जब हम आसमान की बादशाही में जाएं, तो क्या हम सबको शाही कायन का किरदार हासिल नहीं करना चाहिए जो बाप और माँ ने हमारे लिए तैयार किया है? आइए हम वो कलाम देखें जो बताता है कि हम बादशाही करेंगे। मुकाशफा बाब 22 आयत 1। फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बरे के तक से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बरे का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदामद खुदा उनको रोशन करेगा। और वो अब्दुलबाद बादशाही ये ऐसी बादशाही नहीं है जिसकी मियाद 4 या 5 साल हो। वो कब तक बादशाही करेंगे? ये लिखा है कि वो अब्दुलबाद बादशाही करेंगे। खुदा ने ये वादा किया था। चूंकि आसमान की बादशाही में तमाम फरिश्तों को उन वली अहदों से मिलना है जिनमें खुदा की मोहब्बत की सिफत होती है, तो क्या इस ज़मीन पर हर रोज खुदा हमें अपना कलाम नहीं सिखाते? कुछ लोग ये सोचते हुए कि किताब मुक़द्दस के बाद हिस्सों को नजरअंदाज कर देना ठीक है, किताब मुक़द्दस के मखसूस हिस्सों को अहम और दिगर को कम अहम गर्दानते हैं। ताहम आप सब, क्या हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में आयत नहीं पढ़ी थी? क्या खुदा ये नहीं कहते हैं कि अगर तुम्हारी रासबाजी फकीयों और फरीसियों की रासबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगे? खुदा ऐसा क्यों कहते हैं? क्या वो हमें धमकाने के लिए ऐसा कहते हैं? क्या वो हमें डराना चाहते हैं? इस जमीन पर आईनो कवानीन है, और आसमान पर भी आईनो कवानीन है। सिर्फ जब हम तमाम आसमानी तकाजे पूरे करें तो हम शाही काहिन बन सकते हैं, जो बाप और माँ चाहते हैं कि हम आसमान की बादशाही में हों। सयून के तमाम फर्जंदों को याद दिलाया जाता है कि आप सब आसमानी माँ का खूबसूरत महीन कतानी कपड़ा बने। आज से शुरू करते हुए हमें अपने गलत किरदार को बदलते हुए नए सिरे से पैदा होना चाहिए। हम आहंगी या इत्तेहाद में नाकामी की वजह यह है कि हम हमेशा अपनी जात पर तवज्जो देते हैं। अगर हम दूसरों पर तवज्जो दें तो इत्तेहाद नागुज़ीर है।
लिहाजा किताब मुक़द्दस हमें एक दूसरे के लिए क्या करने को कहती है? ये हुक्म एक शख्स के लिए नहीं है, हर एक को दूसरे की खिदमत करनी है। हमें किस चीज से एक दूसरे की खिदमत करनी चाहिए? मोहब्बत की राह से, फरोतनी से एक दूसरे की खिदमत करो। आप सब जब ऐसा हो तो खुशखबरी का काम पूरा हो जाएगा। बसूरत दीगर आलमी बशारत का काम एक आरजी ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं होगा। जब हम खुदा के कलाम की तालीमात पर अमल करें तो सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी का काम भी अंजाम पाएगा। फर्ज करें कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हैं, जबकि खुदा का काम तेजी से शुरू हो रहा है और पूरा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जल्द बदलना चाहिए ताकि हम सब उस काम की मुकम्मल पैरवी कर सकें जिसकी क़यादत खुदा कर रहे हैं। सही? महज एक नारा लगाने की बजाय हम तैयारी करें ताकि सब रूहें यरूशलेम आसमानी माँ की बाहों में लौट सकें। मोहब्बत से महरूम इस नस्ल के लिए खुदा हमें क्या ना करने को कहते हैं? वो कहते हैं, इस जहान की हमशक्ल ना बनो। जब लोग इस दुनिया में किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो फिक्रमंद और मेहरबान हो, तो वो उस शख्स के साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे वो अहमक या नाअहल हो। ताहम हम आसमानी कवानीन सीखने वाले लोग हैं, ना कि ऐसे लोग जो सिर्फ दुनियावी चीजों का पीछा करते और उन पर तवज्जो देते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आसमानी चीजों का ताकुब करने वालों के तौर पर हमें अपनी जिंदगियां आसमानी बाप और आसमानी माँ की तालीमात और हिदायत के मुताबिक गुजारनी चाहिए। एली के दो बेटे थे जिनका नाम हुफनी और फिनहास था। वो अक्सर हर तरह की बदी करते थे जो खुदा की कुर्बानियों को नापाक कर देती थी। उन्होंने ऐसे काम किए जिनकी हैकल में इजाजत नहीं थी। पाकतरीन कुर्बानियां काहिनों के हवाले की जाती थीं और वो उनकी हकारत करते थे। नतीजतन खुदा ने हुफनी और फिनहास को सजा देने का फैसला किया। उन्हें खुदा से क्यों सजा मिली थी? क्योंकि लोग खुदावंद की कुर्बानी से घिन करने लगे थे। खुदा का कलाम जिसे आज हम सुन रहे हैं, अगर हम इसे दुनिया में अच्छी जिंदगियां गुजारने के लिए महज इखलाकी सबक के तौर पर सीखें, तो फिर हमारे लिए खुदा के कलाम को सुनने और इबादत करने के लिए यहाँ जमा होने की कोई वजह नहीं है। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ आसमानी आयनो कवानीन सीखने आए हैं। हम यहाँ खुदा की तालीमात हासिल करने आए हैं कि आसमानी लोगों के तौर पर अपनी जिंदगियां कैसे गुजारें। क्या ये सच नहीं है? नीज हम यहाँ खुदा की इबादत करने और खुदा की हम्द करने आए हैं। तो फिर हमें महज ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तमाम कलमात अच्छी तालीमात हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस जमीन पर रहते हुए हमें ऐसी तालीमात की जरूरत हो सकती है, लेकिन ये तमाम तालीमात आसमान की बादशाही में और ज्यादा जरूरी हैं। इसलिए खुदा ने हमें ये तालीमात बख्शी हैं। इसलिए ये सोचना गलती है कि हम अपने गुनाहगार फितरत से छुटकारा हासिल किए बगैर आसमान पर जा सकते हैं। खुदा हमें क्या करने को कहते हैं? अगर हमारी पुरानी इंसानियत में ऐसी फितरत है जो बदल नहीं सकती, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी पुरानी इंसानियत को उतारना चाहिए। हमें आगे क्या करना चाहिए? हमें नई इंसानियत को पहनना चाहिए जो खुदा के तमाम कलमात को कबूल कर सके। वो पुरानी इंसानियत जो खुदा के तमाम कलमात को कबूल नहीं कर सकती, मुकम्मल तौर पर खत्म हो जानी चाहिए। हम सबको नई इंसानियत पहननी चाहिए। हमारे किरदार को खुदा के किरदार से मुशाबत रखनी चाहिए। चूंकि खुदा मोहब्बत है, तो हमें किस में बदलना चाहिए? चूंकि हमने खुदा का खून और उनका मुकद्दस बदन मिरास में पाया है, तो हमें मुकम्मल तौर पर खुदा की तमाम सिफात के मुशाबे होना चाहिए। आम तौर पर जो लोग किताब मुकद्दस को नहीं समझते, वो इसे समझने में नाकाम रहते हैं। वो महज सोचते हैं नेक जिंदगी गुजारने के लिए अच्छे अल्फाज किताब मुकद्दस में मौजूद हैं। ताहम ये ऐसी किताब नहीं है जो सिर्फ आम लोगों के मुताला के लिए हो, और ना ही ये आसमानी फरिश्तों के लिए किताब है।
ज़ैंगवा दौर से अहद से लवाज़मी हुक्मरानी एक ऐसी किताब थी जिसे सिर्फ शहजादे पढ़ सकते थे। आम शख्स इसे आर्जी तौर पर भी नहीं पढ़ सकते थे। इसी तरह क्या ये सच नहीं है कि हमारे बाप और माँ अब सयून के अपने प्यारे फर्जंदों को तालीम दे रहे हैं और उन्हें ऐसी किताब पढ़ने, सुनने और देखने की इजाजत दे रहे हैं जिसे कोई भी नहीं सीख सकता? अगर कोई शहजादा तालीमात से मुनहरिफ हो जाए तो चाहे उसके पास वलीअहद होने का हक हो, उसे नाअहल ठहरा दिया जाएगा और मुल्क से निकाल दिया जाएगा। जिस तरह जमीनी निजामों के ऐसे ज़ाब्ते हैं, उसी तरह आसमान की बादशाही में भी है। बस हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम इन कवानीन पर अमल करने में नाकाम रहें, तब भी अगर हम चढ़ जाते रहें तो हम आसमान की बादशाही में जा सकते हैं। खुदा ने हमें सिर्फ उस वक्त तक मोहलत दी है जब तक वो इस ज़मीन पर आखिरी अदालत नहीं करते। क्या हमने इसके मुतालिक आयात नहीं पढ़ी हैं? यसू ने पुख्ता तौर पर बात की थी, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रासबाजी फकीयों और फरीसियों की रासबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। उन्होंने इसे बहुत वाजे किया था। ताहम जब हम ये अल्फाज सुनते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि ओ मेरे ख्याल से ये ऐसा पैगाम है। ये महज मेरे ख्याल से नहीं है। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने आसमान पर गुनाह किया और ज़मीन पर फेंक दिए गए। हम उनके फर्जंद थे जो कभी आसमान में बहुत अहम रुतबे पर फाइज थे, और खुदा ने वादा किया है कि जब हम आसमान पर लौटेंगे तो वो हमें शाही काहिन का रुतबा बख्शेंगे। इसीलिए खुदा ने हम सबको इस किताब को सीखने की इजाजत दी है। इसलिए क्या ये वो किताब नहीं जिसे हमें उनकी तालीमात को सीखने, अमल में लाने, समझने और फरमाबरदारी करने की जरूरत है? हम मत्ती की किताब बाब 28 से देखते हैं। मत्ती बाब 28 आयत 18 देखते हैं। यसू ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, क्या आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और हमें और क्या करना चाहिए? उनको ये तालीम दो। हमें उन्हें आसमानी बातें सिखानी चाहिए, ना कि जमीनी फलसफे या जाती ख्यालात। उनको ये तालीम दो कि हमें उन्हें क्या तालीम देनी चाहिए? उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। सिर्फ तभी हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। चूंकि हमें कई तरीकों से कमी है, इसलिए बाप और माँ ने हमें किताब मुक़द्दस के ये तमाम कीमती कलमात बख्शे हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें कतई तौर पर मानना और फरमाबरदारी करनी चाहिए। हम इसे हरगिज ना भूलें। जब किताब मुक़द्दस कहती है कि मुतहिद हो, तो हमें मुतहिद होना चाहिए। ऐसे फरिश्ते हैं जो हमारे इत्तेहाद के स्कोर को जांचते हैं। हमारे पीछे पीछे चलने वाले निगहबान फरिश्ते भी हैं। हमारे शहजादे का इत्तेहाद का स्कोर क्या है? हमारे शहजादे के कितने पॉइंट्स हैं? इनके पास इत्तेहाद के कितने नकात हैं? मोहब्बत में उनका क्या स्कोर है? इनके इखलाको आदाब का क्या स्कोर है? किताब मुक़द्दस में खुदा के तमाम कलाम का मकसद हमें ज़मीनी असूल सिखाना नहीं है, बल्कि इसकी बजाय इस ज़मीन पर पेश की आसमान के असूल सीखने में हमारी मदद करना है। खुदा ने हमें किताब मुक़द्दस का कलाम बख्शा है, इसलिए हम कितने शुक्रगुजार हैं। जब तक वो हमारी यादाश्त में कंदा ना हो जाएं, हमें उन्हें बार बार पढ़ने के काबिल होना चाहिए। यूं आए हम आसमानी माँ यरूशलेम का खूबसूरत महीन कितानी कपड़ा बने, ताकि हम बाप और माँ को खुश कर सके। हमें अपने आप को नेक कामों से चलाना चाहिए, ताकि इस दुनिया के लोग हमारी रुकावट ना बने। चूंकि यह जमीन ऐसी जगह है जहां पर गुनाहगारों को फेंका गया है, तो यह गुनाह से दागदार है। शायद बदकार लोग इस दुनिया में ज्यादा ताकतवर नजर आए। खुदा ने सयोन के खूबसूरत फर्जंदों को उनमें रखा है। खुदा हमें क्या ना करने को कहते हैं? वो कहते हैं, ना उनसे सीखो, ना उनकी पैरवी करो। इस जहान की हम शक्ल ना बनो। हमें इस नस्ल से मुतासिर हुए बगैर आसमानी चीजें सीखनी चाहिए। क्या हमें नहीं सीखनी चाहिए? वो अब्दुल आबाद तक उसके वारिस होंगे। हाँ, अब्दुल आबाद तक।
کیا ہم خدا کے فرزند نہیں ہیں جنہوں نے یہ وعدہ پایا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں کو باہم مل کر اور میل ملاپ رکھ کر خوبصورت مہین کا دانی کپڑا بننا چاہیے۔ پہلے کرنتھیوں باب 13 کے مطابق محبت کیسی ہے؟ یہ مہربان ہے۔ محبت حسد نہیں کرتی۔ محبت دوسروں کو ہم سے بہتر سمجھتی ہے۔ یوں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونا اور ہم آنگی سے رہنا چاہیے۔ جب باپ اور ماں ہمیں متحد ہوتے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہمارے فرزندوں نے خاطر خواہ مشق کی ہے اور سامنے اور زمین کے انتہا تک خوشخبری کی راہ کھولتے ہیں۔ ہمیں ظاہری طور پر کچھ پورا کرنے کی کوشش جاری نہیں رکھنی چاہیے، پہلے اسے ہمارے اندر ہی پورا ہونا چاہیے۔ آئیں ہم سوچیں کہ باپ اور ماں واقعی کیا چاہتے ہیں۔ خدا نے منادی کا عمل کیوں بنایا تھا؟ انہوں نے لوگوں کو مختلف شخصیات اور مختلف آراء کا حامل کیوں بنایا تھا؟ ایک شخص کے لیے اے زیادہ اہم ہے اور دوسرا شخص بی کو زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ ایک شوہر کے لیے اس کا کام زیادہ اہم ہے، لیکن اس کی بیوی شاید پوچھے آپ خاندان کی دیکھ بھال میں کوتاہی کیوں کر رہے ہیں؟ ہر ایک کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے۔ خدا نے اسے ایسا کیوں بنایا تھا؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوتا اگر خدا نے ہمیں پیدا کرتے وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ اور متحد کر دیا ہوتا تاکہ ہم شروع ہی سے محبت کے وسیلہ ایک ہوتے؟ تاہم اگر اے، بی، سی اور ڈی ہیں تو ہر ایک مختلف ہے۔ اگرچہ یہ سب مختلف ہیں پر ایک بننے کا ایک طریقہ ہے۔ واحد طریقہ یہ ہے کہ آپس میں متحد رہیں۔ ہمیں متحد ہونا چاہیے، لیکن اتحاد کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ محبت نامی چپکنے والی چیز کے بغیر اتحاد ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ یوں صرف ایک دوسرے کی کمزوریوں پر توجہ دینے کی بجائے ہمیں ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے تاکہ وہ بہتر کام کر سکیں۔ جب صیون ایسی جگہ بن جائے جہاں جب بھی ہم باہم جمع ہوں زیادہ خوشی کریں اور اکٹھے زیادہ قوت پیدا کریں تو باپ اور ماں دیکھیں گے اور کہیں گے اب انہوں نے واقعی سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اب آخرکار وہ سمجھ گئے ہیں کہ نئے عہد کی راہ کیا ہے۔ اس طرح سے وہ خوشخبری کی راہ کھولیں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ نے زیادہ فضل حاصل کیا ہے، میں آج کا واعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔